Okay. Once again, good morning, students. Okay. Today's our agenda of lecture is to implement the service which is explained program by me already to you regarding team service. So it is totally a testing project, but how to create and how to use the code of book, that is important. So it will save your time. And again, the author has created the example and shown the example in old version. So even if you are going to get or copy the code of book, some dependency, some background dependency will not allow you to execute the same code as it is. And important thing, please listen carefully. If we are going only through the book ka code, we are not able to execute that service as it is. Reason is that first I already told you dependencies and versions are changed. Second is that author has not disclosed each and every step which is required to execute the practical, because some configuration files are pending, some configuration files are not explained, then some environmental variable settings are not explained in the book. So there are so many problems are there. So what I am suggesting you, there is a complete executable code repositories provided by the author in the GitHub. There, from there, you can download the code, and that code you can execute with some little bit changes. Okay. So now that what kind of changes that I can address you, because I have already faced the problem while executing the program. So let us start with sharing the screen. Okay. So this is the chapter in which that test service is explained. So I'll just tell you how to do it, what how you can do it, and if you want to do it manually. Okay, the book in upcoming part of book I'm going to tell you about the Visual Studio ka use and then creating a service. Okay, that is a different part. And executable part, we can use the local host or local IIS service, or let us say Postman and other services that I will explain. But exactly we are not going to going with the steps of book, but the code and part the logic is going to be same as per the book. So I'll just show you one thing. Okay, 1 minute. So in let us say where are the code given and shown, that I will tell you. So this is the link. Okay, in the book it was given. In the book it was given all the code link http colon github.com microservice dash ASP.NET center. In the introductory part of book, it was told that all the solutions, whatever author discussed in this book, are displayed here. So I will show you that repository. Hopefully you are able to see the screen. Okay. So this is the site. This link is given in the book already, github.com slash microservice dash ASP.NET Core. So all the example executed in the book or shown in the book are stored here. All the repository and code and complete that folder ka structure is stored here. So you can see here, the first one is presentation, order management service, that we are all other codes we are going to learn later on. Okay. So this one, platform order command, partial food API, hello world. This is from the book. Okay. These all are examples we are going to execute one and another way. Okay. And you can see here event processor, location service, that we are going to start today possibly. Location service, लोकेशन सर्विस का ही एनहांस और उसने प्रोजेक्ट में ऐड करके ES लोकेशन रिपोर्टर सर्विस बनाया है. Then this is the example that I have already told you from the book. Team service, then hello book, then there are so many examples. All the these many microservices I have shown in the book and explained in the book. The uh, compiled project folders are stored here. The problem is with this code and exactly why we are not able to use, because author used a wrecker, and that wrecker is not easily or straightforwardly available to Windows platform. Either we have to go on
now that is owned by Oracle. Then we have to create the account, we have to pay something there, and then dynamically we have to execute this example, which is not feasible for the example. So let us say if you want to download any complete example from this particular site, let us say टीम सर्विस है, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, स्टिल टू शो यू टीम सर्विस, इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, इसमें सारे फाइल्स आप लोगों को दिए, दैट कोड हियर, यहाँ पे आप लोगों को ग्रीन बटन मिल रहा है, कोड, इसको राइट क्लिक करेंगे, ठीक, यहाँ पे डाउनलोड जिप करके ऑप्शन आता है, और यू कैन ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप, बट वहाँ पे आप लोगों को डिप्लॉय नहीं करना है, वी आर यूजिंग डिफरेंट सेटिंग, तो डाउनलोड जिप, जैसे आप ये जिप डाउनलोड करते हो तो ऑब्वियसली आप लोगों का डाउनलोड फोल्डर में वो जिप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, आई विल जस्ट शो यू, यहाँ पे देखो एक लोकेशन सर्विस का मैंने डाउनलोड किया है, देन टीम सर्विस का मैंने डाउनलोड किया है, ओके, देन ऑब्वियसली यू नीड टू एक्सट्रैक्ट दैट वन, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों को इस तरीके का फोल्डर मिलेगा, सो दिस इज टीम सर्विस मास्टर एंड दिस इज लोकेशन सर्विस मास्टर, सो okay, sorry, this I have moved here, I'll show you there, okay, डी ड्राइव पे मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके का आप लोगों को ऑलरेडी ऑथर ने जो डिप्लॉय किया हुआ कोड वो मिलेगा, प्रॉब्लम इज दैट कि दिस कोड also, again already I told you, as it is, it will not execute, you will start, go on command prompt and just try to test this particular code, but you need to make some uh, adjustment, okay. So this is the code. First I will show you SRC में स्टैटलर वर्ड का कॉर्पोरेट का ये पर्टिकुलर है, ओके, एंड देन इसमें टेस्ट का एक, ओके, टेस्ट में ये चीजें हैं, so what is there, I have done some modification to in order to execute this particular program, for example यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट फाइल है CSPROJ, ओके, इसमें आप लोगों को इसको ओपन करना पड़ेगा, इफ यू वांट दैट एग्जांपल टू एग्जीक्यूट ऑन योर मशीन, नोटपैड में ओपन करो, एंड फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, डॉट नेट कोर 1.1.0 समथिंग यहाँ पे लिखा रहेगा, लेटेस्ट अगर आप लोगों ने डॉट नेट का वर्जन है ऑलरेडी आप लोगों को पता है, कमांड टू चेक विच डॉट नेट वर्जन टू यूज, दैट यू कैन यूज हियर आई कैन, आई नीड टू चेंज माई डॉट नेट वर्जन टू 5.0 because I am using latest one, and that older 1.1 ka support is not there. If support is there, then it is fine, but there is no support. So that is one I will show you. This is I have changed, I have modified that, some kind of modification you have to do in your code. One of them is important, this one, okay, that I have done, and some of the references you have to change because that particular error will be shown on your command prompt, and then you have to make the adjustment. Otherwise the fun part, executing the example, understanding the example कहाँ तक करते रहोगे, उसको practically अगर execute नहीं कर पा रहे, so there is no fun part and obviously there is no learning part, but it becomes tremendous tedious while doing this stuff. कॉन्फ़िगरेशन में क्या प्रॉब्लम है, तब क्या पर्टिकुलर क्लास था, कौन सा डिपेंडेंसी था, देन यू हैव टू यूज a Google. Google means that is a search engine, but you can use Slack Trace, or there are many Microsoft support sites are there that will give you options what to change. But exactly right now, I cannot brief you what kind of changes you have to make. Whatever major changes are there that I am going to tell you. So this you have to change. You can see here, if you want to open this particular file, okay, integration, this file I have opened. I think CSPRJ, this is the file. You can see the code here. Okay. स्क्रीन पे अगर आपको हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या लिखा है, नेट कोर ऐप 1.1 and which is not supported on my machine because I am using 5.0. So that changes we have to make because command line editor आप लोगों को उतना है तो बताते हैं. So let us start. To begin, if you want to go by book, then how we are going to create that I am going to tell you. So what you have to do, okay? CSPRJ, that particular project will be created when you are going to compile that particular project. But starting में initially you have to do first
if it is required on your machine for your antivirus protection. Okay, this is the steps I am following. First I am going to run the docker because that is required one. पहला docker run करके मैं ready रहूंगा and then फिर मैं बाकी का command prompt से ठीक है. Then antivirus मैंने disable किया है because that is required on my machine. Without that docker not running. Okay, and once the docker starts, अगर आप लोगों को मेरे मशीन का टास्क बार दिख रहा है तो वहाँ पे डॉकर का वेल वहाँ पे रनिंग में दिख रहा रहेगा एंड नोटिफिकेशंस भी आ रहे डॉकर स्टार्टिंग समथिंग. जब तक ये डॉकर का लेफ्ट हैंड बॉटम साइड में वहाँ पे स्टार्टिंग का ऑप्शन है वो ग्रीन नहीं होता है तब तक आप लोगों का डॉकर इज नॉट रनिंग. और ऑलरेडी मैंने आपको डॉकर के बारे में बोला है. इट कैन रन ऑन बोथ द कंटेनर, विंडोज कंटेनर एज वेल एज लिनक्स कंटेनर. विंडोज कंटेनर पे रन होगा तो आप लोगों का जो बुक का कंसेप्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज वो लिनक्स कंटेनर के साथ लिखा है. तो नाउ हियर इट इज अ green and running symbol and you can see the docker images are already deployed there. So it is okay right now. I'll just minimize it. So that means we are ready. Open the command prompt. Okay, and run as administrator. It is not compulsory to run as administrator for each and every step. But to avoid any further problem, I'll just suggest you to run the command prompt always as administrator mode so that we will be at appropriate position. Now, I will tell you now, we have to execute the example from the book, how we can start. Okay, I'll just go through this particular team service the project. Okay, this is already I have explained you code by code. I have already explained you how you can create it on your machine if you want to copy the code of book. So what you have to do, as suggested in the book, if you read this, they have suggested each and everything how you can prepare. But some common sense directly we can apply while using the book. Okay, so this is the one for this is the team service API है. इसको छोड़ो, बाद में हम फोल्डर स्ट्रक्चर बताया उसमें जाएंगे. Okay, the team test first controller development. यहाँ पे चेक करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर दिया है. Okay, this is the folder structure. So in that way अपना फोल्डर स्ट्रक्चर अगर आप लोग बना लेते हो तो देन यू कैन डू इट. यहाँ पे फिर भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग वाला और एक फोल्डर आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा. So what is suggested there? You should have one main folder. In that you should have one SRC project and one test project. Okay, one SRC and one test. So what you can do? I have already given you one example which creates a complete scaffolding. So I'll tell you what is that. One example I have shown you in scaffolding command I have told. I'll just check whether it is there or not. No, it is about the problems and solution. So I will give you that command. I'll just write how to create that one. But we will use not we will not use book का part, but we will use okay, we will use Microsoft का site का whatever here they have given. Okay, so this is about checking .NET version here. This we will use. Okay, so what is that .NET new web API? इतना हमारे लिए important है, but उसका नाम क्या रहेगा that we can okay create here my team service and this is no HTTPS. That means we are not having any dependency of secure line and forced to use .NET version 5.0. So that is what I am saying. So copy this command, okay, and change the project name. So I will just put this in this particular file which is I am going to provide you. Okay, to create project with command line scaffolding के लिए which command we are going to use this one and here what we are going to use okay your service name. Okay, so what I will do, I will copy this one and I will use this one into the folder. So first you need to decide where you want to create that.
Okay. So I just want to create all my project on D drive into the MSA folder because this subject is microservice architecture, whether you are calling .NET Core techniques, but still this is my folder. So in that folder, I need to create this particular project. Okay. So on command line, what we have to do first? On command line, we have to navigate to that command first. Okay. So I'm going into D drive. Sorry. Okay. D drive and then CD MSA. And now I will execute that command by changing the name also. Okay. Now here I will write my team service, or I will put team service. Okay. And then I will press enter. So obviously .NET will create a project file for restore and whatever required is. So empty project पहले आप लोगों को create करना पड़ेगा. Now I will show you that scaffolding by default is created by .NET. What is there? .NET. Okay. MSA folder के अंदर we have to see now. You can see here. This is our team service. Okay. These are different things. So this is our team service we have created. Along with this folder, what is created there? Let us see. You can see controller, object, properties, app setting, program, startup, CS. So many things are created. But this is creating by default weather forecast.cs. So we do not want to use that. And startup file also we need to change that I will show you. Okay. Let's check again. You can use any other empty project, but you can see here. I think some weather forecast का वहाँ पे automatically है because we are using from. Okay. तो डिफॉल्ट वर्जन में वो पर्टिकुलर फाइल्स आप लोगों को यहाँ पे मिल गया. इन दैट फोल्डर वी कैन पुट अवर SRC फोल्डर. इन दैट फोल्डर वी कैन क्रिएट अवर this structure. So what is the structure you require? This one. Okay. So we have to create two directories, SRC and test. You can create here. Okay. New folder, or directly from command prompt it will be tedious. So I am just giving you a shortcut part, SRC, and then new folder, test. Okay. SRC and test यहाँ पे create किया. Okay. And then inside SRC, if they want to, okay, as per the author he has said, we have to create this folder. Okay. This is the setting, otherwise it will not execute by book step. Okay. In SRC you have to create new folder. Okay. Created that one, copy that one, and then under that folder you require another folder. Okay. In that folder you will require another folder. Name is models. As it is, capital दिया है तो capital, because configuration में we do not want any changes. तो मॉडल फोल्डर में फिर आप लोगों को बाकी का फाइल वहाँ पे बताया. एंड देन सिमिलरली टेस्ट फोल्डर के अंदर आप लोगों को और एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, बिकॉज आप लोगों को ये ट्री हायरार्की यहाँ पे जो बताया गया है, okay, नोड, उसके हिसाब से आप लोगों को फोल्डर्स वहाँ पे बनाना है. तो दिस इज SRC हुआ. तो SRC के बाद टेस्ट फोल्डर में अगेन वी हैव टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर विद द नेम कॉपीड. ये शॉर्टकट है, आगे बुक्स में पढ़ के भी किस तरीके से बनाना है, दैट आई एम आल्सो गोइंग टू टेल यू. तो ये आप लोगों ने यहाँ पे बना दिया. इसके अंदर आप लोगों को और कुछ नहीं है, डायरेक्टली फाइल बनानी है. अब इसमें जो CS जो फाइल है ये हुआ नहीं, बिकॉज दिस फाइल is automatically created when you compile the project. Okay. So required files first we will create the program. That means .cs files we have to create, some configuration related changes we have to do, and project file is going to automatically created in that folder. So this is your main folder. This we are not running, but we are running a test project. So under test project, what we are going to do, that is important. I'll just give you one example to save the time. See how you are going to create this file. First, I have ready with the structure of program. Main project file है, then उसमें SRC और test folder है. SRC और test folder के अंदर ये वाला folders है. Okay. और यहाँ पे एक structure भी मैंने बनाया. जिसको रन करना रहेगा तो देन आई हैव टू यूज दिस फाइल्स. ऑलरेडी आई एम हैविंग program.cs, startup.css. तो यहाँ का वहाँ फाइल कॉपी किया तो चलेगा. डिजायर्ड चेंजेस एज पर
told by, okay, told by the author that we have to make. So in this, inside this particular project, start work of dot team service dot test dot csbro. अब ये फाइल अगर हम लोगों को चाहिए वहां पे, तो देन वी हैव टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आप लोग देख सकते हो कि ये फोल्डर नेम है अपने पास, ओके, डॉट टेस्ट, टेस्ट नाम का वो पर्टिकुलर उसने फोल्डर बनाया। तो आई थिंक यहाँ पे इधर टेस्ट लिखा है, और ये जो फोल्डर है वो टेस्ट नाम से, इसके अंदर हम लोगों को सी एस पी आर ओ जो फाइल क्रिएट करना है। So we will go into that particular folder. This is the folder. I will just copy the path so that आप लोग वहाँ पे command prompt से उस folder के अंदर जा सकते हैं। I'm just putting that path. Okay, you can go over there. Okay, and here you can use your command. What is that? Dot net restore. Let us say it will execute that one or not, because there is no current working directory has contain project or solution file, because वहाँ पे CSPRO जो फाइल रेडी नहीं हुआ है। जब फाइल क्रिएट होगा तब हम लोगों को उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ये चेंज तो मैंने बोला है एज इट इज कोड वी कैन नॉट यूज। ओके, दिस इज द वन, एंड देन फर्स्ट वी विल, प्रोजेक्ट फाइल तो बाद में क्रिएट करेंगे, बट उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो वहाँ पे बता दिया। डॉट नेट को रैप 1.1 ये फाइल, और एज इट इज कॉपी करो, और ये चेंज आप लोगों को बाद में करना ही पड़ेगा। okay? First, before we create a controller, test controller, just create a class for team model. तो टीम मॉडल में क्लास कैसे क्रिएट करना है, याद रहे फाइल का नाम देखो कौन से फोल्डर में क्रिएट करना है वो भी लिखा है। एसआरसी फोल्डर के अंदर, टीम सर्विस के अंदर, मॉडल फोल्डर के अंदर आप लोगों को टीम डॉट सी एस नाम का फाइल बनाना है। अगर उसको आप लोग डॉट नेट एडिटर यूज नहीं कर रहे हो, सिंपली इसको कॉपी करो पूरा कोड को। ओके, कॉपी करो, और हमको कहाँ पे बताया है एसआरसी, इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर मॉडल्स के अंदर। वी विल नेविगेट टू देयर टेस्ट। ओके, टेस्ट में नहीं करना है हम लोगों को, कहाँ पे करना है, एस आर सी, ये फोल्डर के अंदर मॉडल्स के अंदर क्रिएट अ न्यू फाइल। तो इसका भी शॉर्टकट मैंने आपको बताया। पहले एक नॉर्मल एम्प्टी टेक्स्ट फाइल बनाओ, इसको ओपन करो, इसमें पोस्ट करो, पेस्ट करो, एंड देन ओके, इसको सेव करते हो। दिस स्टेप इज इम्पोर्टेंट, आप लोगों को पता है, आई नो दैट, बट आई नीड टू रिपीट इट। सेव एज करो, सेव एज करते वक्त उसका नाम रखो टीम डॉट सी एस, जैसे बुक में बोला है, और नीचे जो सेव एज टाइप है उसको क्या करना है आपको, ऑल फाइल्स। तो ये प्रॉपरली डॉट सी शार्प फाइल नाम से सेव हो जाएगी। ठीक है, इसे सेव करेंगे। यू कैन सी हियर आपका टीम डॉट सी एस हुआ है, और ये रहने दो ताकि आप लोगों को और कोई फाइल बनाना रहेगा तो इसी में आप लोग कर सकते हो। तो ये सी शार्प फाइल आप लोगों का बन गया है। देन अगेन, एज पर सेड इन द बुक, टाइम इज रनिंग। Okay, I'll just show you few files creation and then we will go for execution. ट्रैक्टर वर्डर कॉर टीम सर्विस मॉडल, उसी में आप लोगों को और क्या फाइल बनाना है, मेंबर डॉट सी एस। ओके, तो मेंबर डॉट सी एस को बनाना रहेगा तो आप लोग कैसे करो, सेम सिमिलर आप लोग यूजिंग सिस्टम, इसको कॉपी करो यहाँ से यहाँ तक। दिस इज जस्ट स्टेप्स फॉर एग्जीक्यूटिंग बुक्स एग्जाम्पल। ओके, ओपन करो, कंट्रोल भी करो, फाइल, सेव एज, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, मेंबर डॉट सी एस, एंड नीचे क्या करना है, याद से सेकंड टाइम आई एम टेलिंग ऑल फाइल्स। ओके, ऑल फाइल्स करोगे, सेव करो, आप लोगों के दोनों फाइल क्रिएट हो। इन सिमिलर वे, once the files are created, each and everything is created, then you can start, okay sorry, then you can start creating other files। जैसे जैसे बोला है इसमें कंट्रोलर टीम डॉट सी एस एस बनाना है, कहाँ पे बनाना है, ये टेस्ट फोल्डर के अंदर है। ये एस आर सी वाला दो फाइल बताया टेस्ट फोल्डर के अंदर। तो गो टू देयर, टेस्ट फोल्डर में ये फाइल को कॉपी करो। ओके, इसको कॉपी करो टेस्ट फोल्डर में। वेयर इज दैट, टेस्ट फोल्डर मॉडल एस आर सी गया यहाँ पे, टीम सर्विस टेस्ट फोल्डर, टेस्ट फोल्डर के अंदर हम लोगों ने ये बनाया है, इसमें
आप लोगों को ऑब्वियसली उसी तरीके से काम करना है। तो अगर आप लोगों को जल्दी में इसको पेस्ट करूंगा, इसका नाम क्या दिया है, okay, you can see here file name is teams controller test.cs, यही से कॉपी कर लो, फाइल सेव एज डॉट सी एस करना है, याद रहे, और नीचे ऑल फाइल्स करना है, सेव करो। ऑलरेडी वी आर इन द सेम फोल्डर, ओके, एंड देन डॉट नेट रिस्टोर। ठीक है, फिर से आप लोगों को डॉट नेट रिस्टोर कमांड जब आप करोगे तो वो आप लोगों को वहाँ पे आई थिंक यही मैसेज देगा कि कोई बिल्ड फाइल वहाँ पे नहीं है, बस सी एस पी आर ओ जो फाइल वहाँ पे नहीं है। तो हम लोगों ने क्रिएट करते वक्त वो फाइल वहाँ पे नहीं था, तो देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट कॉपी दैट फाइल एंड पेस्ट इट। ये जो था ना ऑलरेडी यह वाला फाइल, दिस इज वन, दिस वन, ये कहाँ पे बना है, ये भी टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर सी एस पी आर ओ जो बोला है। So I will copy this one. Okay. Okay. I will copy this particular file. इसकी वजह से हमारे प्रोग्राम का वो बाकी का स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है एंड इट इज नॉट शोइंग, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट दैट फाइल इनटू टेस्ट फोल्डर। ओके, यही पे हम लोगों को बनाना है। तो मेरे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें मैंने ये पेस्ट किया है। नाउ अभी मुझे इसका नाम भी यहाँ से कॉपी करना है, बट दिस इज अ कंप्लीट सिंगल नेम। ओके, बिकॉज कोई स्लैश नहीं है, इसको कॉपी किया एंड देन जब मैं इसको सेव एज करूंगा, फाइल सेव एज, इसमें पेस्ट करूंगा एंड देन हियर आल्सो आई एम गोइंग टू यूज ऑल फाइल्स। तो मेरा सी एस पी आर वाला फाइल भी फोल्डर में रेडी हो। ओके, एंड नाउ अगेन यूज डॉट नेट रिस्टोर। यू कैन सी हियर, वहाँ पे ऑलरेडी वो डॉट नेट डिपेंडेंसीज और सारी चीजें बोल रहा है यहाँ पे। Here warning is that the target framework net.core app is out of support and will not receive any security। जब हम रन करेंगे तो एरर देगा। राइट नाउ हम लोगों ने सिर्फ रिस्टोर किया है। तो लेट अस सी यहाँ पे कमांड जो बोले हैं, मिनट, ओके, एंड देन डॉट नेट टेस्ट वो बोल रहे हैं, कॉपी दैट वन। ओके, डॉट नेट रिस्टोर की जगह पे आप लोगों को क्या करना है, और टेस्ट, अप टू डेट फॉर रिस्टोर, कोई टेस्ट वहाँ पे नहीं हो रहा है बिकॉज ये फाइल इनको नहीं मिला, टीम सर्विस डॉट सी एस जे, बिकॉज वहाँ पे भी आप लोगों को वो उसी तरीके का फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट एक्सप्लेन इन द बुक, व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज ये जो फाइल है, विच वन, प्रोजेक्ट फाइल, ये आप लोगों को वहाँ पे कंपाइलेशन के पहले बनना चाहिए या नहीं वो अलग बात है, विच वन, दिस वन, एक्सएमएल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल, बट ये फाइल वहाँ पे नहीं मिला है। ये टेस्ट फोल्डर के अंदर हमने प्रोजेक्ट फाइल बना दिया। व्हाट अबाउट एसआरसी फोल्डर, so we have to create similar file in src folder also, but the name of file will be this, okay, Statler World, Statler Welder Corp dot team service dot cs वर्ड। अभी ये फाइल कौन सा है, टीम सर्विस डॉट टेस्ट सी एस पी आर, जबकि हम लोगों को रेफरेंस इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। आई विल कॉपी दिस सेम फाइल, ओके, कॉपी, एंड देन आई विल गो टू src फोल्डर, ओके, ये है, ठीक है। आई जस्ट चेक द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल फर्स्ट, आप लोग देखो कि सी एस पी आर जो फाइल कहाँ पे होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर फोल्डर में ये फाइल होनी चाहिए, ये देखो। इसलिए मैंने बोला स्ट्रक्चर वाले फाइल्स आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेंगे, अगर वो ऑटोमेटिकली नहीं होते हैं तो देन यहाँ पे मैं ऑब्वियसली उसी तरीके से करूँगा, एक टेम्पररी टेक्स्ट प्रोजेक्ट लूंगा ये। अब ये हमारा ऑलरेडी एस आर सी फोल्डर है, तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे इसलिए दिया ताकि दोनों प्रोजेक्ट एक साथ रन हो जाए, ठीक है। बट इसमें सिर्फ नेम कॉपी करना है, तो मैं पहले, सॉरी, आई कॉपी इट, ओके, एंड देन फिर मैं ये प्रोजेक्ट रेफरेंस जरूरी नहीं रखा तो भी चलेगा,
इसको सेव करूंगा, सॉरी गड़बड़ होगी, इसको सेव एज करूंगा और उसमें ये नाम डालूंगा यहाँ पे ऑल फाइल्स को। ठीक है, तो अभी ये दूसरे फोल्डर में भी मेरा प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट हो गया। So now I'll do again the .NET Restore. Okay. Again the warning, not netcare वहाँ पे नहीं आएगा. And then I will just use .NET Test. Okay. Because of the dependency in this, netcore.a app 1.1 is out of support and will not receive any security update in the future. So what to refer, and it is given there. The next is, again we have to create some files. We are there, member create किया, team service create किया, then कंट्रोलर टेस्ट किया, सब सारी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट की। ओके, तो इन दैट वे आप लोगों को सारे प्रोजेक्ट के फाइल्स यहाँ पे जो जो बोले हैं पर्टिकुलर फोल्डर्स में, नाउ यू हैव टू क्रिएट टीम सर्विस के अंदर कंट्रोलर नाम का फोल्डर, इन दैट यू हैव टू राइट टीम कंट्रोलर डॉट सी एस, ये फाइल कॉपी करो और वहाँ पे बनाओ। सो नाउ as we are not having sufficient time for executing that one, जस्ट यू नो कि आप लोगों को प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। अदरवाइज आप लोगों को सिंपल ऑप्शन मैंने दिया है, क्या करना है, डाउनलोड करो गिट रिपोजिटरी से, बट एक बार आप खुद का क्रिएट करने का कोशिश करो, दैट इज माय सजेशन। so you will know the dependency कि which file supposed to be in which particular folder, because इसका एक ऑर्डर रहता है, इसका एक स्ट्रक्चर रहता है, बिकॉज दिस इज एमवीसी प्रोजेक्ट। ओके, तो अगर आप टेक्निकली प्रैक्टिकली कहीं डिप्लॉय करके जाओगे तो एटलीस्ट आप लोगों को फोल्डर स्ट्रक्चर और कौन सी फाइल्स इंपॉर्टेंट है वो तो पता होना चाहिए। फिर भी टू सेव द टाइम आई विल शो यू द फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो मैंने भी एक बनाया है, बट ये यहाँ पे है, एमएसए में मैंने कुछ एग्जांपल ये डाउनलोड किया है। ओके, और ऑलरेडी जो मैंने बनाया था टीम सर्विस का, दैट आई एम गोइंग टू शो यू। एडमिन, ओके, इसमें 1 मिनट, एमएस, दिस इज द टीम सर्विस का प्रोजेक्ट आई हैव क्रिएटेड। इसमें देखो एसआरसी और टेस्ट मैंने डायरेक्टली बना दिया था, जो फिर बाद में प्रॉब्लमेटिक हुआ था। देन इसमें देखो जिस तरीके से फाइल बनाया बोला है उस तरीके से फाइल बताए हैं, एंड देन टेस्ट में ये फाइल बनाई। ओके, so this is the folder structure, so we are going to execute now pre-built folder structure to save the time। ये ऑलरेडी ऑथर ने बनाए हुए हैं टीम सर्विस मास्टर। ओके, इसमें देखो ये पर्टिकुलर फोल्डर है, सिर्फ उसने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए रेकर डॉट YML यूज किए हैं। यहाँ पे हम लोगों को ये यूज करना है। ओके, इसमें उसने आगे का जो एक्सप्लेन किया इंटीग्रेशन टेस्टिंग का, उसके भी फोल्डर बनाए। so let us we will go to this particular folder। okay, I will go to command prompt, okay, sorry, cd, डायरेक्टली भी जा सकते हैं बिकॉज यू ऑलरेडी वहाँ पे हैं। एंड देन एग्जीक्यूशन स्टेप, प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट यूजिंग एंड एसोसिएटेड विथ रेकर्स CLI, टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे। मैं बोलते शुभम बेटा यू आर ओके, इज ओके, फॉलो द स्टेप्स। जहाँ पे ऑथर ने सेम सेम फाइल को बाद में मॉडिफाई किया है, पूरा प्रॉपरली आ जाओ, एंड देन यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर। सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग वाला फोल्डर, उसमें रेकर डॉट YML हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे पोस्ट किया है, बट दैट इज नॉट नो यूज ऑफ अस बिकॉज विंडोज एनवायरनमेंट में वो एज इट इज यूज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे रेकर का छोड़ दो, रेकर के बाद हम लोगों को बाकी सारी चीजें हैं, डॉकर रन, .NET सर्विस, टीम सर्विस, दैट इज डिफरेंट थिंग। 1 minute, just I will show you the execution process। Okay, I'll just try our main। So
फर्स्ट .NET रिस्टोर फोल्डर में गया, अप टू डेट है प्रोजेक्ट। देन .NET बिल्ड यू हैव टू यूज। रिमेंबर यहाँ पे मैंने .NET कोर का वर्जन चेंज किया है। ओके, यू कैन सी हियर बिल्ड, ये सारी चीजें, वार्निंग 0। ओके, आई शो यू वंस अगेन। ये पर्टिकुलर फोल्डर में जो टीम सर्विस मास्टर है, आई जस्ट क्लोज द एग्जिस्टिंग फाइल्स, काफी बंच हो गया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देखो टेस्ट में और एसआरसी में मैं ये दोनों फाइल्स ओपन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। विच वन? प्रोजेक्ट डॉट CSPR हो ये फाइल, ओपन विथ नोटपैड। यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया, दिस वन। ठीक है, वहाँ पे नेट कोर था, यहाँ पे मैंने नेट पर 5.0 ये चेंज किया है, बाकी सब रख दिया बिकॉज इसको सपोर्ट है ये वर्जन को, फोल्डर वर्जन को। बट टारगेट फ्रेमवर्क अगर हमारा लेटेस्ट रहेगा तो वी हैव टू राइट दैट न्यू, अदरवाइज इट वुड हैव गिवन एरर। देन यहाँ पे टेस्ट में भी मतलब एज इट इज मैंने ऑथर का भी यूज किया तो भी वही प्रॉब्लम वहाँ पे आया। यहाँ पे भी देखो नेट 5.0 किया है। So even if you download that code, some modification you require to do to create that particular project. As now we are not using any uh, Wrecker, what we can say Wrecker configuration file. So .NET test वाला part यहाँ पे execute नहीं होगा, but service properly run होगा. It will show you your projects are up to date, all tests are succeeded. बस टेक्स्ट यूनिट का वहाँ पे पार्ट नहीं आ रहा है जो हम लोगों को आउटपुट वहाँ पे सीख करना था। But still we can go on and do the integration testing with आउटपुट वाला पार्ट। उसके लिए उन्होंने रेकर CLI का कमांड बताया, कर्ल कमांड बताया, दैट इज आल्सो नॉट इजीली एग्जीक्यूटेड। so what you can do here, we will run the team service with docker image, so we will use this command। यहाँ पे यह docker का कमांड डायरेक्टली वहाँ पे चल जाएगा। so let us say I'll copy this and I'll just paste it and I'll try to execute। okay, you can see here hosting environment, production content root pipeline something, and now listening to HTTP some local host। यहाँ पे 000 बताया एक्चुअली, बट 8080 पोर्ट पे एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। तो डॉकर इमेज इज रनिंग, मतलब अपना कमांड एग्जीक्यूट हो गया। नाउ टू लिसन दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज हम लोगों ने टीम सर्विस में कोई वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये पर्टिकुलर चीज एग्जीक्यूट करनी है तो यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर पोर्ट HTTP यहाँ पे। ओके, एंड देन सर्विस में HTTP लोकल होस्ट 8080, वहाँ पे आप लोगों को वो पर्टिकुलर चीज रनिंग है, बट आप लोगों को आउटपुट वहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट। ओके, आई जस्ट कॉपी दिस, आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस। ओके, एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आर रनिंग वहाँ पे, वो वहाँ के आगे चेक करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसमें ये बताया गया है HTTP localhost 8080 teams, दिस इज योर पार्ट, यू कैन यूज दैट वन ऑल्सो। पर जो दिया वही है, सिर्फ आगे का। ये दूसरा ओपन हो गया था। यू कैन सी हियर एम्प्टी टीम मेंबर्स आर देयर। अभी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ चेक कैसे करेंगे, उन्होंने वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं कर्ल कमांड यूज करके। ओके, कर्ल फिर एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है, दैट एग्जीक्यूट्स ऑन दिस वन, व्हाट वी कैन से इन विंडोज एनवायरनमेंट में वो पावर शेल पे रन होता है। आई जस्ट यूज पावर शेल, इसको भी एडमिन प्रिविलेजेस के साथ आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। पावर शेल विंडोज में रहता है, and here you can use this command curl। if I am going to copy and paste this one, this will not execute because a single line चाहिए। सिंगल लाइन करने के लिए what we have to do, okay, let us check। बट हमारे पास उसके भी पॉसिबल दूसरे ऑप्शंस हैं। okay?
दैट आई विल टेल यू यूआरआई किस तरीके से लेता है. Okay, so I will use this curl command on PowerShell, which is not helpful, but still I am going to tell you. It will tell you that cannot bind parameter headers, cannot convert the content type application JSON value to type of system dot string. तो इसमें भी हम लोगों को काफी ज्यादा इश्यूज है कमांड के, तो हम लोगों को वो पर्टिकुलरली यहाँ पे इसको सिंपली कर्ल कमांड के थ्रू कैसे होता है वो देखना है. कर्ल अगर हम यूज करेंगे तो इट इज आस्किंग फॉर अस यूआरआई. लेट अस से वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यूआरआई which is that http this one. Okay, okay, so it is just giving us कि service is running. That means service is running, so ये status है वहाँ पे particular. Now what about JSON values that we want to send and receive from the service as a response? तो हमारे पास पर्टिकुलर वो फ्रेमवर्क नहीं है जहाँ पे आप लोगों का रेकर CLI एग्जीक्यूट हुआ रहेगा. तो एज पर ऑलरेडी ऑथर हैज टोल्ड कि किस तरीके से यूज करना है. अगर आप लोगों के पास ओके, इफ यू डोंट हैव विंडोज, आई थिंक इट हियर इट वाज मेंशन समवेयर. ठीक है, यहाँ पे आप लोग अमेजॉन वेब सर्विस, क्लाउड सर्विस और सब कुछ यूज कर सकते हैं. अल्टरनेटिव वेज दिए है, बट आप लोगों को वहाँ पे पोस्टमैन सर्विस का यहाँ पे बताया है. आई विल जस्ट कॉपी इट. पोस्टमैन, ठीक है, क्रोम प्लगइन फॉर पोस्टमैन वी कैन यूज टू गेट द कर्ल का एग्जीक्यूशन. बट कर्ल का एग्जीक्यूशन आप लोगों को एज इट इज कमांड लाइन वहाँ पे फॉलो नहीं करना है. सो व्हाट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, गो टू विंडोज, ओके, एंड डू डाउनलोड पोस्टमैन. बस इतना भी किया तो भी आप लोगों को आ जाए. www.postman.com यहाँ पे आना है. okay? यहाँ पे अकाउंट और कुछ बनाना पड़ता है. डाउनलोड द ऐप फॉर विंडोज, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो ऐप आता है. इंस्टॉल इट. इंस्टॉल के बाद आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से इसको रन करना है. Do you able to see the Postman app running? Hello, is anyone there Yes, in the? yes. Yes, sir. Now यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को प्रिकॉशियस रहना है, बिकॉज वो पर्टिकुलर ये वहाँ पे कैसे कमांड लाइन पे पैरामीटर देकर चेक कर रहे हैं. यू कैन सी हियर. आई विल गो बैक टू आवर, आई थिंक all practical supposed to be done in 2 hours का this thing, but we have to manage because there is no time. इमेज रनिंग होना चाहिए, डॉकर का इमेज. ओके, डॉकर का इमेज रनिंग होना चाहिए. आई विल जस्ट गो टू आवर, because starting this one, yes, we are in this chapter. तो कॉल कमांड हम लोगों के पास रेकर CLI नहीं है तो हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. तो वी आर हैविंग अनदर ऑप्शन कॉल्ड एज यूजिंग पोस्टमैन सर्विस. ये टूल ऐसा है जो कर्ल कमांड में भी क्या कर रहे हैं आप लोग वो वहीं पे पता चलेगा जब मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा. ओके, ये टेस्ट का तो अलग बात है. that too is the proper service. docker रन किया, इमेज रनिंग है, you know that it is listening. ओके, ये शुरू है, अभी तक बंद नहीं किया हमने. एंड विथ कर्ल कमांड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये कर्ल कमांड है एक तरीके का जिसमें आप लोग इस पर्टिकुलर व्हाट इज दैट सर्विस को जो लोकल होस्ट पे रन रहे हैं उसको जेसन ऑब्जेक्ट के पैरामीटर पास करें. what you are passing, id is equal to this, name is equal to this, and then you are passing. okay, और ये कर्ल कमांड से डायरेक्टली यहाँ पे पास करते. एक्सपेक्टेड है अगर हार्ड कोडेड रहेगा तो ऐसे, या फिर एटलीस्ट एम्प्टी रिस्पॉन्स तो भी आना चाहिए. राइट नाउ करंटली आप लोग यहाँ पे देखोगे एम्प्टी रिस्पॉन्स है स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू. ओके, एंड आप लोगों ने एपीआई देखा रहेगा. एपीआई भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. कुछ एपीआई आप लोगों को गेट के थ्रू एग्जीक्यूट करने, कुछ पोस्ट के थ्रू. ओके, just give me a time.
इतना ज्यादा भी नहीं है, जस्ट वी विल सी। अपने को एपीआई डिजाइन स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, दिस इज द एपीआई, यू कैन सी हियर। आपको टीम्स करना है तो आप लोग गेट से भी कर सकते हो। ओके, टीम्स प्लस आईडी अगर आप देख सकते हो तो वो ओके, टीम्स आप लोगों को पोस्ट से भी कर सकते हो, लेकिन टीम्स अगर आपने गेट मेथड यूज किया तो गेट लिस्ट ऑफ ऑल टीम्स, और टीम्स अगर आपने पोस्ट मेथड से किया तो क्रिएट अ न्यू टीम। तो पोस्ट मेथड से अगर आप लोगों को क्रिएट करना है तो देन पहले पोस्ट मेथड से प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड देन गेट मेथड से एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे नाउ हाउ द पोस्टमैन वर्क दैट यू नीड टू लिसन केयरफुली। यहाँ पे आप लोग पाथ दोगे, व्हाट माय पॉइंट। पाथ के बाद आप लोग यहाँ पे जाओगे बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में आप लोग लिखोगे रॉ, सॉरी लिखोगे मतलब सिलेक्ट करोगे रॉ, एंड हियर बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, टेक्स्ट या कुछ ऑप्शंस रहते हैं, एक एरो। प्लीज रिमेंबर दिस वन बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जेसन सिलेक्ट करना है। जेसन सिलेक्ट करने के बाद देन फिर पैरामीटर देना है। तो व्हेन वी आर गोइंग टू सेंड इट, यहाँ पे मेथड भी आप चेंज कर सकते हो, गेट पोस्ट पुट डिलीट जो भी बताए वो मेथड भी चेंज कर सकते हो। तो व्हाट इज आवर एपीआई टेल्स अस दैट गेट लिस्ट, लेकिन गेट के पहले हमको क्या चाहिए, पोस्ट चाहिए। तो पहले क्रिएट अ न्यू टीम, सो वी आर गोइंग टू यूज पोस्ट मेथड। फिर यहाँ पे टीम्स ये पर्टिकुलर पाथ तो वहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पोस्ट मेथड के लिए फिर हम लोगों को पहले, सॉरी हम लोगों को 1 मिनट, पैरामीटर्स पास करने। ओके, सो वी विल गो टू पैरामीटर पासिंग फर्स्ट। ओके, so what kind of parameter we are expecting here, id। okay, so this is the parameter we want to pass। okay, so you can write here one by one और डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हैं, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। so I'll just id equal to something, then name passing, I'll just put a comma here। okay, and then we will send it। okay, okay, रिक्वेस्ट हमने सेंड किया, कुछ टेस्ट रिजल्ट आया क्या हेडर से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बट देर इज नो रिजल्ट रिटर्न। लेट अस से पोस्ट के बाद किया तो वी विल नाउ गो टू गेट एंड वी विल ट्राई टू चेक, यस वैल्यू चेंज हुआ है, कर्नल चेंज हुआ है, बट यू हैव टू सी आउटपुट। ओके, इट इज रिटर्निंग नल, मतलब हमने कुछ वैल्यूज में गड़बड़ किया है। ओके, so we'll try to give in the format how to send it। फॉर्मेट में देखो आईडी भी डबल कोट में। ओके, दिस इज द फॉर्मेट दे वांट टू सेंड, सो वी विल कॉपी दिस एंड वी विल पेस्ट दिस, और फिर हम लोग इसको करेक्ट करने का हो गया, स्लैश न्यू लाइन के लिए, इसलिए इसको हटा देता हूँ। ओके, एंड नाउ पोस्ट मेथड करेंगे पहला, पोस्ट, लेट अस से दिस विल एग्जीक्यूट। ओके, एंड देन गेट, अगेन नल। बट इतना आप लोगों को एग्जीक्यूशन समझ में आना चाहिए कि दो वैल्यू हमने पास किया, थोड़ा सा आई थिंक कहीं पे मेरा भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन में या कहीं पे तो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, हम लोगों को ये आना चाहिए, जॉम्बी और उसका आईडी मेंबर इस तरीके से आना चाहिए। समथिंग वी सर आर मिसिंग सिंगल कोट हटा के देखो ना। यहाँ पे। सर सिंगल, हाँ ओके, सिंगल कोट, फर्स्ट सिंगल कोट। वाला, इसको भी हटा के देखते हैं, बट स्मॉलर चेंज है। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट सेंड, दिस इज नॉट ओके, आई विल जस्ट फर्स्ट ट्राई टू अगेन गेट, आई डोंट थिंक सो बट आया तो ठीक है, यस आ गया, सिंगल कोट हटा दिया। ओके, थैंक यू। Who's that? मैंने नेम नहीं देखा बिकॉज आई एम जस्ट वरीड अबाउट टाइमिंग। यस, हेलो। सर प्रीवियस रिकॉर्ड भी नल 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 इसने ऐड किया है। हाँ, तो वो हम लोगों ने वहाँ पे एक्चुअली उसका जो जितनी बार हम लोगों ने गेस्ट और पोस्ट किया ना,
फुल फ्लेज माइक्रो सर्विस नहीं बनाई है ना बेटा हमने। डू गेटिंग माई पॉइंट? हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका परसिस्टेंस बना के रख रहे हैं। ओके, तो Okay, वो sir. वही कैप्चर करके रख रहा है। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट। राइट नाउ हमारा एग्जीक्यूट होकर मैसेजेस वहां पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो इम्पोर्टेंट है। तो दैट मीन्स आवर टीम वॉट एवर, पहले हम लोगों ने क्या किया, कर्ल से हम लोग उसको पैरामीटर भेज रहे थे। दैट मीन्स सर्विस हम लोगों का कांटेक्ट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। वो कर्ल की जगह पे हमने किससे किया, पोस्टमैन से किया। पहले हमने डेटा भेजा कि मेरा टीम का आईडी ये है, ये टीम है। टीम सर्विस अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा रहेगा तो उसका पर्पज क्या है कि टीम इज अपडेटिंग देयर आईडी एंड देयर नेम, कि नया टीम ऐड हुआ है और फिर हम लोगों को सर्वर में परसिस्ट हुआ है डेटा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ओके, होपफुली अटेंडेंस एकदम फटाफट देना है। ओके, द नेक्स्ट वन इज चेकिंग दैट वन। ओके, देन अगर अब हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, आई एम जस्ट कॉपिंग दैट वन। आई एम गोइंग टू पोस्ट इट हियर again. This one supposed to like this one. Okay, then post. Okay, post किया है and then we will try to get, वो वहाँ पे persistent वहाँ पे रहेंगे। हम लोगों ने उतना कोडिंग नहीं किया है बेटा उसका सर्विस का, प्रीवियस वैल्यूज ये सारी चीजें उसको अटैच होकर ही आएंगी। मेंबर्स हमने ऐड नहीं किए हैं, अगर हम लोग ऐड करेंगे। लिसन स्टूडेंट, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट व्हाट वी आर गोइंग ट्राइंग टू डू इट। दिस इज जस्ट अ टेस्ट प्रोजेक्ट, उसको एग्जीक्यूट किया। अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट है लोकेशन सर्विस। फिर हम लोग देखेंगे कि लोकेशन का वैल्यू प्रॉपरली आया या नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म यूज कर, वाई वैल्यूज आर परसिस्टिंग और वो अपेंड क्यों कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा प्रैक्टिकल का मेरा एम क्या है कि मुझे आप लोगों को सर्विस एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से वो दिखाना है। ओके, and there are many problems that are happening with that. What kind of problems are there? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसको विंडोज एनवायरनमेंट में रन कर रहे हैं, उसका सेटिंग बराबर नहीं, कॉन्फ़िगरेशन रेकर डॉट वाई एम एल में है। उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिव टूल यूज करके उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आई एम नॉट वरीड अबाउट कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है या फिर वैल्यू होते हैं। राइट नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गेटिंग योर आउटपुट एंड प्रोग्राम फंक्शनैलिटी। लेट अस से अपकमिंग डेज में हम लोग सारे करेंगे, और जैसे ही हम लोग डॉट नेट पे शिफ्ट हो जाएंगे तो देर विल बी नॉट एन issue. So I have given you the attendance link. Please fill the attendance immediately so that I can report to 9 o'clock. Now the time is already running. अभी आप लोगों को अगर बाकी स्ट्रक्चर समझ में आ गया रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट सर्विस का नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इनिशियल वे में फटाफट हम लोग उसको क्या है, क्या पर्पस है, किस तरीके से फाइल से, वो सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेंगे कोड। एंड नेक्स्ट वही डाउनलोडेड फोल्डर है, क्रिएट नहीं करते बैठेंगे, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे। इज इट ओके फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स? आई एम आस्किंग यू समथिंग। हेलो, Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर का स्ट्रक्चर मैंने बताया। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द कोड एंड व्हाट आर वंस इन लोकेशन सर्विस, नेक्स्ट चैप्टर का है। एंड देन फिर हमारे पास ऑलरेडी कोड है रेडी, तो हम लोग उसमें जाकर उसको रिस्टोर और सब कुछ करके देन Okay. डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे थ्रू पोस्टमैन। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्लीज गिव द अटेंडेंस एंड लीव द लेक्चर एज अर्ली एज पॉसिबल। Thank you. थैंक यू स्टूडेंट। यस मधिया, जिग्नेश, शुभम, thank you. Shubham, your attendance is not done. I'm just ending the lecture.